So when we go from many to one, we do the division. So here I have written also, excuse me, to find capacity of Coke drank by one friend, we have to divide total capacity of Coke contained in 6 bottles by 12, because 3000 milliliter of Coke was consumed by 12 friends equally. So एक आदमी ने कितना कोक पिया है ये ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 6 बॉटल्स के अंदर जो टोटल कोक था, टोटल कैपेसिटी ऑफ कोक विच इज़ कंटेन्ड इन दी 6 बॉटल्स, वी हैव टू डिवाइड दैट बाय 12. क्यों 12 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि द कोक विच वॉज देयर इन दीज 6 बॉटल्स वॉज ड्रैंक बाय दीज 12 पीपल. जो 6 बॉटलों के अंदर कोक था वो कितने लोगों ने मिलके पिया था, 12 लोगों ने पिया था. इसीलिए हमें जो वो 6 बॉटलों के अंदर मिला के जितना भी कोक का कैपेसिटी बनता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से. ओके, सो डू इट. Capacity of Coke drank by one friend is equal to total capacity of Coke in 6 bottles divided by 12. We already have found total capacity of Coke in 6 bottles. It is equal to 6 into capacity of Coke in 1 bottle. Capacity of Coke in 1 bottle कितना है, दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में. 6 bottles of Coke each having 500 ml है ना. each having 500 ml मिलीलीटर्स, मतलब एक बॉटल में इतना कोक आता है. तो 6 बॉटल्स में कितना आएगा, 6 इंटू 500 इट इज़ 3000 मिलीलीटर. और इतना सारा कोक ये 12 लोगों ने पिया है, 3000 मिलीलीटर. अभी एक बंदे ने कितना कोक पिया है वो ढूंढ के निकालने के लिए 3000 मिलीलीटर को डिवाइड करो 12 से. नाउ डू दी डिवीजन with the help of long division method. So 3000 is dividend, we will write this 3000 in the inside the box, and 12 is divisor, we will write 12 outside the box and start dividing by 12. I hope you all must be knowing the table of 12. So start saying table of 12. 12 ones are 12, 12 twos are 24 है ना. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. So quotient will be 2. 30 minus 24, रिमाइंडर आएगा 6. सो 6 रिमाइंडर आया है. नेक्स्ट डिजिट इज 0. सो पुट दिस 0 डाउन नेक्स्ट टू द रिमाइंडर 6. सो 6 0 बनेगा 60. सो नेक्स्ट डिविडेंड विल बी 60. 12 की टेबल बोलो. 12 5s are 50. So we'll write, sorry, 12 5s are 60. So we'll write 5 in the quotient. So 60 minus 60, remainder आया 0. Next digit is 0. So we'll put this 0 next to the remainder 0. So the number next dividend will be 0 0 0. Now we have to put 0 in the quotient. That's why 12 into 0 is 0. So 0 minus 0 we get remainder finally equal to 0. And what is the answer? Quotient में जो आएगा वो हमारा final answer होगा. 250 is our final answer. So write down in answer, capacity of Coke drank by one friend is equal to 250 milliliter. या पूरी तरह से सेंटेंस में लिख सकते हो 250 मिलीलीटर ऑफ कोक ड्रैंक बाय ईच ऑफ 12 फ्रेंड्स. सो हर एक ने मिलके कितने मिलीलीटर कोक पिया है, इतना 250 मिलीलीटर कोक हर एक ने मिलके पिया है. 12 लोगों में से हर एक ने 250 मिलीलीटर ऑफ कोक पिया है पार्टी में. ठीक है, वन फ्रेंड यानी एक आदमी ने इतना कोक पिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.2, and in this way we are going to complete this chapter 11, capacity measures. Okay, I'll read the question. If the cost of 1 liter of cough syrup is rupees 480.40, यहाँ पे point है. I think it is not clear in the video, but there is a point over here. Okay, decimal number है rupees 480.40. Find the cost of 500 milliliter, 250 milliliter
and 200 milliliter. So I am going to solve only sub part B. The remaining 2 parts you have to solve on your own. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 में 3 सब पार्ट्स है A B C. मैं उसमें से सिर्फ B सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के बच्चे 2 सब पार्ट्स आपने अपने मन से सॉल्व करने. सो व्हाट इज़ देयर इन द क्वेश्चन? दे आर आस्किंग अस, अगर 1 लीटर कफ सिरप की कॉस्ट इतनी है, 1 लीटर कफ सिरप खरीदने जाओगे तो इतने कीमत देनी पड़ेगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे. कितने हैं? ₹480.40. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कफ सिरप फॉर 500 milliliter, 250 milliliter and 200 milliliter. So I am going to find the cost of cup syrup for 250 milliliter. Okay. पहले तो डाटा गिवन लिखो. Cost of 1 liter of cup syrup. What is the cost of 1 liter of cup syrup? It is already given. Cost of 1 liter of cup syrup is equal to ₹480.40. Now cost of 250 milliliter of cough syrup. What we have to find? Cost of 250 milliliters of cough syrup. I am going to solve B parts. That is why I have written 250 milliliter of cough syrup. When you do the homework, you can mention these two in separate calculations. Okay. इसी में नहीं सारा कुछ करना है, separately solve करना है. Okay. Cost of 250 milliliter of cough syrup is equal to question mark. Now see, explanation I have written already over here. I'll read it for you. To find cost of 250 milliliter of cough syrup, we have to find how many equal parts of 1 liter can be made so that each part has capacity of 250 milliliter. Now to find the cost of 250 milliliter of cough syrup, we have to divide this 1 liter of cough syrup into number of equal parts, and each equal part will have कैपेसिटी ऑफ 250 मिलीलीटर्स. यानी हमें जो ये 1 लीटर कप सिरप है उसको 250 मिलीलीटर्स के इक्वल पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. 250 मिलीलीटर्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. बट हमें नहीं पता कि 1 लीटर के ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे. 1 लीटर के ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे जिसमें से हर एक पार्ट की कैपेसिटी कितनी होगी? 250 मिलीलीटर्स. ये 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, वो हमें पता नहीं है. हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 लीटर कैन बी मेड सो दैट ईच पार्ट हैज़ द कैपेसिटी इक्वल टू 250 मिलीलीटर. दैट मीन्स 1 लीटर को हम डिवाइड करने वाले हैं 250 मिलीलीटर्स के इक्वल पार्ट्स में. दैट मीन्स 1 लीटर को हमने डिवाइड करना है किससे? 250 मिलीलीटर में, क्योंकि 1 लीटर को हम डिवाइड कर रहे हैं 250 के इक्वल पार्ट्स में, 250 मिलीलीटर्स के इक्वल पार्ट्स में. सो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 लीटर number of equal parts of 1 liter each of capacity 250 milliliter is equal to 1 liter को डिवाइड करना है. किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 1 लीटर को कर रहे हैं ना डिवाइड. कितने पार्ट्स में कर रहे हैं? 250 ml के इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं. दैट इज़ वाई 1 लीटर डिवाइडेड बाय 250 मिलीलीटर्स. नाउ ये लीटर्स में है, ये मिलीलीटर्स में है. वी कांट डिवाइड लाइक दिस. वी नीड यूनिफॉर्म यूनिट. दोनों या तो लीटर्स में हो, दोनों या तो मिलीलीटर्स में हो. 1 लीटर 1 मिलीलीटर ऐसे नहीं चलेगा. दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स सेम होने चाहिए. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1 लीटर इनटू मिलीलीटर. वी ऑलरेडी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter. So we'll replace this 1 liter by 1000 milliliter. So 1000 milliliter divided by 250 milliliters. Start dividing 1000 by 250. So मैंने यहाँ पे एक easy trick करा है, आप लोग attention देना. 1000 डिवाइडेड बाय 250. तो हमने फ्रैक्शंस में भी देखा है. डिवाइडेड बाय मतलब ये वाला साइन भी होता है. सो 1000 बाय 250. 1000 नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखो बाय 250 मीन्स 1000 विल बी इन न्यूमरेटर एंड 250 इन दी डिनोमिनेटर. 1000 को न्यूमरेटर में लिखो, 250 को डिनोमिनेटर में लिखो. फ्रैक्शनल वे में लिखो और डिवीजन शुरू करो. सो 1000 बाय 250 लिखा. फिर 1000 और 250 के जो कॉमन ज़ीरोज़ है वो क्या करने हैं? कट करने. जैसे 250 के 1s प्लेस में 0 है, इसके भी 1s प्लेस में 0 है. दोनों के 1s प्लेस के 0 क्या कर दिया हमने? कट कर दिए.
अभी कट करने के बाद क्या हुआ, ये बना 1 0 0 100, ये बना 25, 100/25 क्या बना फ्रैक्शन अभी हमारा, सिंप्लीफाई कर रहे बेसिकली हम, 100/25 फ्रैक्शन क्या बना 100/25। नाउ यू कैन डिवाइड 100/25, 25 की टेबल तो आती है, सो 25 4 ज़ा 100, सो 25 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आता है 4, 25 4 ज़ा 100, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर 100, सो 25 4 ज़ा 100 एंड 100 माइनस 100 रिमाइंडर इज 0, सो कंप्लीट डिवीजन हो गया, आंसर आएगा 4, जो क्वेश्चन है दैट विल बी योर आंसर, दैट इज वाई 4 इज योर आंसर। सो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 लीटर ऑफ number of equal parts of 1 liter each of capacity 250 ml is equal to 4। so 1 लीटर को 250 ml के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कितने इक्वल पार्ट्स बने उसके, 1 लीटर के 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, यानी 250 250 250 250 ऐसे 4 बार अगर हम जोड़ेंगे एक साथ 250 मिलीलीटर्स को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे या 4 बार मिलाएंगे आपस में तो व्हाट विल गेट 1 लीटर, है ना। सो और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 1 लीटर के 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, इफ़ वी डिवाइड 1 लीटर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स तो ईच पार्ट विल हैव कैपेसिटी इक्वल टू 250 मिलीलीटर। अगर 1 लीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट की कैपेसिटी कितनी आएगी 250 मिलीलीटर, या इससे उल्टा भी बोल सकते हैं, इफ़ वी कंबाइन टुगेदर 250 मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विड तो इट विल गिव अस टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 1 लीटर। अगर 250 मिलीलीटर किसी भी एक लिक्विड का 4 बार हम ऐड करेंगे 250 प्लस 250 देन विल गेट 1 लीटर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, नाउ सी, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल वे में भी बताया इक्वेशन बिटवीन 250 मिलीलीटर्स एंड 1 लीटर्स। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 250 मिलीलीटर्स। अगर 1 लीटर क्वांटिटी जो है वो कैसी है, 4 टाइम्स अगर हम 250 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा 1 लीटर ऑफ लिक्विड, या उल्टा भी बोल सकते हैं 250 मिलीलीटर कैसे है, अगर हम 1 लीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे that part will have capacity equal to 250 milliliter. If we divide 1 liter of liquid into 4 equal parts and each of that part will have capacity equal to 250 milliliter. So fraction में कैसे बोले, 1/4 of 1 liter is equal to 250 milliliter. Now क्या करना है, हमने मेन क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप। कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें 1 लीटर कफ सिरप की कॉस्ट पता है, नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप। सो 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप इज 1/4 ऑफ 1 लीटर, सो कॉस्ट भी वैसे ही होगी, 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ कफ सिरप विल बी द कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप। जो 1 लीटर की कॉस्ट है उसको अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप। सो 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ कफ सिरप इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप। 1/4 इंटू ₹480.40। नाउ सी, दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर एंड दिस इज द इंटीजर नंबर, इसमें डेसिमल भी है, डेसिमल पॉइंट भी है, तो हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वे में लिखना है। जब डिनोमिनेटर नहीं होता तब डिनोमिनेटर उसका 1 होता है। सो 1 इंटू ₹480.40 न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4। ओके, सो 1 इंटू ₹480.40 मतलब क्या हो गया, वही सेम नंबर आएगा 480.40/4। नाउ डू द डिवीजन। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये याद रखना है डिवीजन करते समय।
So start saying the table of 4. 4 ones are 4. So 4 minus 4, 0. Next digit is 8. Put this 8 next to this 0. 4. So dividend will be 8 now. 4 2s are 8. Quotient में 2 लिखो. 8 minus 8, 0 आया. So remainder is 0. Now next digit after 8 is 0. Put this 0 down next to this remainder. 0 0 आया हमारा next dividend. So जब 0 0 आता है तो हम क्वोशंट में 0 लिखते हैं. 0 इंटू 4, 4 इंटू 0 इज 0, है ना. बट यहाँ पे देखो अब इस 0 के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है. दैट इज़ वाई हमने जो ये क्वोशंट लिया था यहाँ पे 0, इसके बाद भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और फिर नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे. सो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4. 4 को एज इट इज़ नीचे लिखो. 4 1 जा 4. क्वोशंट में 1 लिखो. 4 minus 4 is 0. Now next digit after this 4 is 0. Remainder was 4. Put this 0 next to the remainder. So next dividend is 0 0. When 0 0 is there in dividend, you directly put 0 in the quotient. 4 into 0 is 0. 0 minus 0, answer will be 0. Final remainder is 0. And there is no digit left after this 0. That means we have to stop dividing further. Now final answer will be the quotient. Quotient क्या होगा हमारा final answer. So cost of 250 milliliter of cough syrup is equal to rupees 120.10. क्या आया आंसर, रुपीज़ 120.10. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है. किस डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, ये जो थर्ड डिजिट है इसके बाद डेसिमल पॉइंट है. तो हमने क्वोशंट में भी थर्ड डिजिट के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल पॉइंट. ओके. So I hope you have understood how to solve this question number 10. It is bit tricky but try to solve on your own. 500 milliliter और जो 200 milliliter A और C सब पार्ट बचा है वो आप अपने मन से सॉल्व करो. And if you have any queries, any doubt related to these questions, you can ask me. And in this way we have finished with this chapter number 11 from your maths textbook, that is capacity measures. Okay, and in next class we are going to start with the new chapter. Till then, thank you. Have a good day.